And a close associate of Arvind Kejriwal's and a founding member of the Aam Aadmi Party, Santosh Kohli, was killed in a road accident in May last year. Now, at the time, Arvind Kejriwal had questioned whether Kohli's was an accidental death. It's been nearly a year, and Santosh Kohli's family efforts to reach the former Delhi Chief Minister have failed. They ask why Kejriwal, as Chief Minister, did not order an investigation into her death. आज संतोष कोहली की आत्मा जहां कहीं भी होगी, अगर वो हमें देख रही होगी, अगर वो सुन रही होगी, तो वो खुश होगी कि उसकी शहादत बेकार नहीं गई. When the entire country was watching him live during his oath-taking ceremony at the Ram Leela grounds, Arvind Kejriwal remembered Santosh Kohli. But does he still remember her? Santosh Kohli met with a road accident on the 30th of June last year and succumbed to injuries 37 days later. Was it a simple hit-and-run case, or was it a conspiracy to eliminate her? The question still remains unanswered. Santosh Kohli's family still do not understand why Kejriwal, as Chief Minister, did not order a proper investigation. वो खुद एक सीएम रह के वो कर सकते थे मेरी बहन के मौत का खुलासा जो भी था. Arvind Kejriwal was believed to be very close to the Kohli family, even stayed at their Sundar Nagari home during the Power Bill Andolan. However, after Santosh Kohli was cremated, he has not once visited the family that has been desperately trying to get in touch with him. Incidentally, all the medical reports and other legal documents are with Arvind Kejriwal. The sister is now threatening to sit on a fast. वो जब इतने बड़े-बड़े खुलासे कर सकते हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ाई लड़ सकते हैं, बड़े-बड़े कोयला घोटालों में वो लोगों के लिए आए हैं आगे सामने, इतनी बड़ी-बड़ी वो आरटीआई डालते हैं, तो संतोष के लिए आखिर वो आगे क्यों नहीं आ रही है हमारी समझ में भी. अरविंद 37 दिन तक फोर्टिस हॉस्पिटल में बराबर जो है हमारे पे नज़र रखे रहे और रोज़ाना मिलते रहे, हॉस्पिटल में आते रहे, और कोई भी ऐसी बात अभी तक हमारे को अरविंद ने नहीं कही कि मैं नहीं ये करूँगा कि मैं. Headlines today also spoke to the doctor who was part of the Aam Aadmi Party team back then. Pretty close to me, just like a daughter, and I felt that I lost my daughter. Dr. Talwar has raised many questions over the circumstances surrounding Kohli's death. According to him, the person Kuldeep Pawar, who was on the motorcycle with Santosh Kohli, did not sustain major injuries. It also puzzles him how he recovered so fast. So if not number, at least the size of the car, the color of the car, that made an impact. So he said he could not remember or recollect because the impact was so huge. Even if it was an accident, in the manner that is prescribed, it leaves a lot of questions to be answered. Dr. Talwar believes there is a deeper conspiracy. What he still does not understand, however, is why Arvind Kejriwal, as Chief Minister, did not order a proper investigation. With Amit Chaudhary and Ashish Mehrishi in New Delhi, Bureau Report, Headlines Today. जो कि काफी गंभीर आरोप उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर लगाया, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक है. क्या कुछ हुआ, आप लोग केजरीवाल के पास जब मिलने गए थे? मैं 25 दिन पहले केजरीवाल की पहले मैंने विभाग को फोन करा और नहीं तो मैं अरविंद के पास आ रही हूँ, अरविंद से बोलो मुझे टाइम दो. तो विभाग ने काफी मुझे बोला कि जो मर्जी कर लो, तुम जो तुम्हें दिखे वो करो, हम डरने वाले नहीं है. तो मैंने कहा ठीक है, डरने वाला नहीं है ना, कोई बात नहीं है, अरविंद से टाइम लो और मैं अरविंद के पास आ रही हूँ. तो जब मैं अरविंद के घर गई तो मैं थी, मेरी बेटी थी, मेरे पति थे, हम लोग तीनों लोग बैठे और इतना जैसे पानी दिया ना, ऐसे उसमें दिया, भिखारी को भी साफ गिलास में पानी देते हैं, ऐसे प्लास्टिक के गिलास में हमें पानी दिया गया, वो हमने पानी पिया और फिर अरविंद आया. भाई गुस्से में हम तो बोलेंगे, जब हमारी बेइज्जती को बंद कमरे में कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे उससे, क्योंकि तेरे घर पे आए तू तो इल्जाम भी लगा सकता है कि मुझे मारने आए. तो इसने बोल के फिर मेरी बड़ी बेटी ने कहा, उषा ने, कि भाई साहब ये बताओ मेरी बहन का आप क्या कर रहे हैं संतोष का. तो कह रहा चुप होकर बैठ जा, खामोश होके संतोष का नाम लेना बंद कर. ऐसे करके इसने मेरी बड़ी बेटी को डांटा और हम तीनों को ही डांटा इसने. धर्मेंद्र भी साथ ही गए? नहीं, धर्मेंद्र साथ नहीं, उनके पिताजी और मेरी बड़ी बेटी से बोला. तो मेरी बड़ी बेटी ने भी बोला कि हम नाम लेना बंद क्यों करें.
उसके बाद में कह रहा मेरे घर से जाओ। मैंने कहा हम तो जा ही रहे तेरे घर से। अगर ये सबक अगर मैं बोलना चाहती ना वहाँ पे कि 15 दिन तू मेरे घर में रहा था और 12 साल मेरी बेटी तेरे साथ रही थी, तब तूने ये लफ्ज क्यों नहीं बोला था कि मेरे घर से जाओ? जब तू मेरे घर में आता था और 2 साल पार्टी बनने से 2 साल पहले तू मेरे से ये कह के गया था यहाँ बैठ करके मेरे घर में कि हम पार्टी बना रहे हैं और हम संतोष को सहयोगी रखेंगे। मैंने इजाजत दी तब मेरी बेटी तेरी पार्टी की वो बनी। मैं इजाजत नहीं देती तो मेरी बेटी बनती। आज मुझे अरविंद से ही लड़ाई है, मुझे पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ मैं अरविंद से बोलना ये दिखाना चाहती कि मुझे जवाब दे कि अपनी बेटी का नाम लेना मैं कैसे बंद करूं।